Yes, students, starting with next part of the theory of demand. So here we will discuss today change in quantity demanded, which is said to be movement along the demand curve, and change in demand is said to be shift in the demand curve. So what is change in quantity demanded or movement along demand curve? It arises due to change in own price of the commodity. That is, law of demand is totally applicable on the change in quantity demanded. Here other factors remaining constant. So it is further divided into two parts: extension of demand and contraction of demand. Extension of demand arises due to fall in the own price of the commodity, and contraction of demand arises due to rise in own price of the commodity. So next concept is change in demand. Change in demand is said to be shift in the demand curve. It is further divided into two parts: backward shift or forward shift. Backward shift is also said to be decrease in demand, and forward shift is said to be increase in demand. So this change in demand or shift in demand जो है, it arises due to change in the other factors, and price of the commodity remains constant here. इस केस में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहती हैं और चेंज होता है प्राइस में। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, इसमें अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं और ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स. So let's explain with the help of the diagram. So as discussed earlier, change in the demand further divided into two parts: extension in demand and contraction in demand. Extension in demand I have already explained. जो extension in demand at arises due to fall in the price. Here watch the table carefully. Price जो price है it is falling from 5 to 1 and quantity demanded is increasing. So that means there is inverse relationship between price and quantity demanded. So here is simple diagram. So there is fall in price is shown in the diagram from 5 to 1 and quantity demanded increases due to fall in price. This is said to be extension of demand. So this is extension of the demand is shown by the arrow. Next concept is about contraction of demand. Contraction of demand, that is, arises due to rise in the price of the commodity. So here it is shown in the table also, price is rising from 1 to 5. So due to rise in price, demand is falling from 5 to 1. So simply we will show in the diagram, when the price is 5, demand is low, that is at 1. When price is 1 and demand is increasing, or vice versa you may say, when price is 5, price is 1, demand is 5, and price is 5 and demand is 1. So here price is rising from 1 to 5 and quantity demanded it is decreasing from B to A. So here arrow is shown from B to A, और you may see at x axis 5 to 1 जो है ये डिमांड है जो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू राइज इन प्राइस. So this is said to be contraction of demand due to own price of the commodity. When the price rises, demand falls. So law of demand is totally applicable here in both cases, whether extension of demand or contraction of demand. So next case is about increase and decrease in demand which arises due to other factors, not due to price. So increase in demand में जो
कमोडिटी का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, हियर इज 10, एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स. सो हियर इट इज शोन इन द डायग्राम आल्सो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और क्वांटिटी डिमांडेड पहले 20 थी फिर 30 हो गई. दिस इज द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. सो हियर इट इज शोन फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. सो कॉजेज क्या है इंक्रीज इन डिमांड के? other factors we have also discussed it earlier कि when income of the price increases or price of substitute goods that is tea or coffee increases, so in case of अगर complementary goods हैं उसका price जब fall करता है और taste and preferences जो हैं वो favorably shift करते हैं, then there is increase in demand. Then or when the availability of the commodity is expected to reduce in the near future. So ये सारे other factors हैं जिसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज करती है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिक्रीज इन डिमांड. So here in case of decrease in demand, again due to the change in other factors rather than own price of the commodity. ये जो कमोडिटी की प्राइस है वो कांस्टेंट ही है. यहाँ पर जो डिमांड फॉल हुई है फ्रॉम 30 to 20, इट इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर्स. सो हेयर वी विल शो बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. बैकवर्ड शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. सो हेयर प्राइस इज शोन कांस्टेंट एट 10 and quantity demanded, first it is shown 30 then 20. So demand curve we have drawn D1 and D2. Here it is backward shift in the demand. So here also other factors जो हमने इंक्रीज इन डिमांड में डिस्कस किए हैं वो सारे फैक्टर्स ऑपोजिटली आ जाएंगे. उसमें हमने पढ़ा था इंक्रीज इन डिमांड में कि जो इनकम है वो राइज करती है, तो हेयर ऑपोजिट रीजन आ जाएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स. देन when price of the substitute goods decreases or when price of the complementary goods decreases. तो ये सारे फैक्टर्स ऑपोजिटली आ रहे हैं इधर. when taste and preferences जो हैं it is unfavorable, तो उधर हमने फेवरेबल डिस्कस किया था पहले. और when availability of commodity is expected to rise in the near future. तो ये सारे फैक्टर्स हैं ऑफ डिक्रीज इन डिमांड के. देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स में 2 कैटेगरीज आती हैं, सब्स्टिट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, इंक पेन एंड बॉल पेन, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाता है कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक. तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड. So first we will discuss about substitute goods. First आपका point है इसमें demand for a commodity in relation to price of the substitute goods. So it is said to be cross price effect. Here I have drawn cross. Cross का मतलब क्या है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट्स में से एक की प्राइस जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती है, तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट में डायरेक्ट रिलेशन है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर टी की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसका जो इफेक्ट है किसके ऊपर होता है? कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर. कॉफ़ी की जो डिमांड है वो राइज करेगी क्योंकि जो कॉफ़ी है वो टी के कंपैरेटिवली क्या हो गई है? सस्ती हो गई है, क्योंकि टी महंगी हो गई है प्राइस राइज होने की वजह से. तो ये ऑपोजिट केस भी हो सकता है कि अगर कॉफ़ी की प्राइस राइज हो जाती है तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? टी की, क्योंकि टी का कॉफ़ी की कंपैरेटिवली चीपर हो गई. बिकॉज जो कॉफ़ी है उसका प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी जो है वो कॉस्टली हो गई. तो जो लोगों की डिमांड है वो कॉफ़ी से किधर शिफ्ट हो जाएगी? टी की तरफ. तो दैट्स वाई इट इज सेड टू बी क्रॉस इफेक्ट, कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करता है. तो ये जो ये वाली एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंगली ये डायग्राम जो है वो बनाया हुआ है. यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टी की क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस पे टी का ही प्राइस लिया है, क्योंकि जो
टी की डिमांड है उसको इफ़ेक्ट क्या चीज़ कर रही है, कॉफ़ी की प्राइस। तो हमने वाई एक्सिस पे क्या शो किया है, प्राइस ऑफ टी। टी की प्राइस ने टी की डिमांड को इफेक्ट नहीं किया, इसलिए जो टी की प्राइस है वो कांस्टेंट ही है। तो जो टी की डिमांड है वो जो राइज हुई है फ्रॉम T1 टू T2, वो किस वजह से हुई है, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी महंगी होने की वजह से जो टी है वो चीपर होगी कंज्यूमर के लिए, जिसकी वजह से टी की जो डिमांड है वो राइज होगी फ्रॉम K1 टू K2। दिस इज द डिमांड कर्व। सो नेक्स्ट इज ये आपका इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिस्कस हो गया। अब ऑपोजिट केस लेते हैं कि अगर प्राइस डिक्रीज होता है, सपोज कॉफ़ी का प्राइस गिर गया, ये फॉल कर गया। अब क्योंकि डायरेक्टली ये इफेक्ट करता है किसको, अपने सब्स्टिट्यूट के डिमांड की तरफ। अगर एक का प्राइस गिरेगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, वो भी गिरेगी। प्राइस ऑफ टी फॉल्स तो डिमांड ऑफ टी विल ऑल्सो फॉल। ये क्यों फॉल हो गया, क्योंकि अब कॉफ़ी सस्ती हो गई तो लोग जो क्या करेंगे, वो टी की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। तो जो डायग्राम में भी हमने सेम कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी शो करना, इधर हम कॉफ़ी का प्राइस शो नहीं करेंगे एज ए रूल, क्योंकि जो डिमांड की थेरी है वो उसी का प्राइस और उसी की क्वांटिटी शो करती है। तो प्राइस ऑफ टी जो है इट इज़ रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि जो टी की डिमांड है उसको कॉफ़ी की प्राइस इफेक्ट कर रही है। टी के प्राइस को कुछ नहीं हुआ, वो उतना ही है। तो कॉफ़ी का प्राइस गिरने से जो टी की जो डिमांड है वो T1 से किधर आ गई, पीछे की ओर आ गई T2, जिसको हम क्या करते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं ऑफ द डिमांड कर्व। दीज आर द टू डिमांड कर्व्स। पहले इतनी डिमांड थी, फिर कम होके इतनी हो गई। सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम K1 टू K2। नेक्स्ट केस, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो फर्स्ट केस है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल क्या है, कार एंड पेट्रोल हो सकती है, इंक एंड इंक पेन हो सकती है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं एंड बोथ आर जॉइंटली डिमांडेड। तो ये इनवर्सली इफेक्ट करती हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। इनडायरेक्टली इफेक्ट से मेरा कहने का ये मतलब है कि एक की प्राइस अगर बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड गिरती है। सब्स्टिट्यूट्स के ऑपोजिट इफेक्ट है इसमें। सो हेयर फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट केस है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, मीन्स पेट्रोल जो है वो कॉस्टली हो गया, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कार की डिमांड के ऊपर। कार की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो हेयर अगेन इन दिस डायग्राम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार इज शोन इन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ कार इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो कार का प्राइस है इट इज़ कांस्टेंट, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है कार की इट रिड्यूसेस फ्रॉम K1 टू K2। क्वांटिटी जो इसलिए रिड्यूस होगी क्योंकि जो पेट्रोल है वो महंगा हो गया, इसलिए लोग कार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कार जो है वो पेट्रोल वाली ही हमने कंसीडर करनी है, डीजल कार नहीं इसमें। तो जो डीजल कार है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है पेट्रोल की। सो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें जो जॉइंटली यूज़ होती हों उसी के ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट होता है। सो हेयर ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, demand of the car decreases from K1 to K2. Here it is backward shift in the demand curve shown. Then next case is if there is decrease in the price of complementary good, that means if price of petrol falls, it will oppositely affect the demand of the car. opposite case है, तो जो कार की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया। So here it is also shown in the figure. Quantity demanded is shown on the x axis
and price is shown on the y axis. Price of the car remains constant. कार की डिमांड को इफेक्ट क्या चीज़ कर रही है? पेट्रोल का प्राइस, ना कि कार का प्राइस. सो बाय फॉल इन द प्राइस ऑफ कार, डिमांड ऑफ द कार विल राइज, क्योंकि अब लोग कार रखना अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया. सो डिमांड ऑफ द कार विल राइज फ्रॉम K1 to K2. दिस इज द राइज इन डिमांड शोन, और यू मे say increase in the demand. Now there are other effects also, relationship between income and demand. So income का इफेक्ट दो तरह की गुड्स के ऊपर पड़ता है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर और इन्फीरियर गुड्स के ऊपर. नॉर्मल गुड्स को हम सुपीरियर गुड्स भी कह सकते हैं. तो नॉर्मल गुड्स और जो इनकम है, इन दोनों का इफेक्ट पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, अगर इनकम लोगों की कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. प्राइस ऑफ द गुड विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ फिर अदर फैक्टर है, इनकम इज द अदर फैक्टर. यहाँ पर जो डिमांड है उसको इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो प्राइस नहीं है. प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. जो इनकम है उसका इफेक्ट हम इस यहाँ पर शो कर रहे हैं, सी इन द डायग्राम. इसमें इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम दोनों का इफेक्ट शो किया गया है. प्राइस ऑफ द गुड विल रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड. नॉर्मल गुड का केस हम देख रहे हैं इसमें कि अगर इनकम राइज करती है, इनकम के राइज करने से नॉर्मल गुड या यू में से सुपीरियर गुड उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी फ्रॉम A to B. दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ A, दैट इज D1, इट इज D2. डिमांड कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम D1 to D2 बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम. और अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम A to C, दैट मीन्स फ्रॉम D1 to D3. that means there will be backward shift in the demand curve. ये D1 से शिफ्ट होके पीछे की ओर आ जाएगी D3 तक, क्योंकि इनकम डिक्रीज हो गई. इनकम डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है और इनकम इंक्रीज होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है. सो नेक्स्ट केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. अब इनकम और इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशन है इट इज़ नेगेटिव, और यू में से ऑपोजिट रिलेशन. ऑपोजिट रिलेशन से मेरा क्या मतलब है कहने का कि अगर इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज होती है तो इनकम के इंक्रीज होने से इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. लोगों की डिमांड उस केस में नॉर्मल गुड्स की तरफ या सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इंफीरियर गुड्स को छोड़ के. दैट्स वाई इट इज सेड टू बी नेगेटिव इनकम इफेक्ट. और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो लोगों की जो डिमांड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स की तरफ. सो हियर इट इज शोन इनकम इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड. यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में अगेन जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर भी हम सिर्फ इनकम का इफेक्ट शो कर रहे हैं. इनकम का इफेक्ट हम थ्योरेटिकली लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन डायग्राम में हम सिर्फ क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर है प्राइस और क्वांटिटी ही शो करेंगे. जो प्राइस है कमोडिटी की इट विल रिमेन सेम. सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो इट विल इफेक्ट ऑपोजिटली on the demand of the inferior good. That means demand of the inferior good will decrease from A to C. That means from D1 to D3. And here if income decreases, अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है
तो वो किसको अफोर्ड करेगा खरीदना? नेचुरली इन्फीरियर गुड को। तो इन्फीरियर गुड की डिमांड उसकी इस केस में बढ़ जाती है। तो दैट मीन्स इनकम के डिक्रीज होने से इन्फीरियर गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और दूसरे केस में अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। नाउ नेक्स्ट अदर फैक्टर क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। सो अगर कंज्यूमर का किसी प्रोडक्ट की तरफ फेवरेबल लाइकिंग है तो उसकी डिमांड उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज अगर वो किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है तो उसकी डिमांड उसकी तरफ कम हो जाएगी। नेक्स्ट अदर फैक्टर क्या है? ट्रेंड्स एंड फैशंस। अगर कंज्यूमर फैशन के साथ चलता है, फैशन के साथ साथ उसकी डिमांड चेंज होती है, तो फैशन के चेंज होने से न्यू ट्रेंड आने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति। अदरवाइज वो डिक्रीज हो जाएगी। जिस प्रोडक्ट का ट्रेंड नहीं रहा उसकी डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इफेक्ट करती हैं। तो सपोज इन केस ऑफ विंटर सीजन कंज्यूमर की डिमांड टी और कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा होती है, और समर सीजन में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की तरफ जो है डिमांड जो ज़्यादा होती है। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू भी हम इसको शो कर सकते हैं कि अगर फेवरेबल टेस्ट है कंज्यूमर का किसी प्रोडक्ट की तरफ तो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम D1 टू D2। और अगर अनफेवरेबल शिफ्ट है तो डिमांड विल बी बैकवर्ड फ्रॉम D1 टू D3। डिमांड कर्व जो है पीछे की तरफ आ जाएगी। तो सेम वे अगर किसी का भी आपको एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसका दिखाओ क्लाइमेटिक चेंजेस का दिखाओ, तो अगर समर सीज़न है, समर सीज़न में जो डिमांड है फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। आइसक्रीम्स के केस में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। और अगर विंटर सीज़न है तो कॉफ़ी और टी की तरफ जो है फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। एंड वाइसा वर्सा इसके ऑपोजिटली समर में टी और कॉफ़ी की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो वो बैकवर्ड शिफ्ट आएगी उसी चीज़ की। और विंटर में उसी चीज़ की जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। सो ये है आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल शिफ्ट या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का शिफ्ट हो गया, वो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट में हम डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे दिस टॉपिक theory of demand. Hopefully you must have understood this topic. So next we will continue with the price elasticity of demand. Thanks for patient listening.